ಹಲೋ, ಹಾಯ್. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, ಎಸ್ ಟಿ ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಈಗ ನಾನು ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ BA ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಹಾನಿ ಸಂಕಲನ ಎನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಮೊದಲ ಪಾಠವಾದಂಥ ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್ ಅವರು ರಚಿಸಿದಂಥ ಸದ್ಗತಿ ಅನ್ನೋ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಮೊದಲು ನಾವು ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಮರ್ ಕಥಾಕಾರರಾದಂಥ ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್ ಅವರು 1980 ಜುಲೈ 31ರಂದು ಬನಾರಸ್ ಅಂದರೆ ವಾರಾಣಸಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಶಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪವಿರುವಂಥ ಲಮಹಿ ಎನ್ನುವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನ್ಮವಾಯಿತು. ಇವರ ವಾಸ್ತವಿಕ ನಾಮ ಅಂದರೆ ಇವರ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಧನಪತ್ ರಾಯ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ತದನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬಂದಂಥ ಇವರು ಜಾಗರಣ್, ಹಂಸ್ ತಥಾ ಮಾಧುರಿ ಅನ್ನೋ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. ಇವರ ಮೊದಲು ಬರೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನವಾಬ್ ರಾಯ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ. ಇವರ ಈ ಉರ್ದು ಕಥೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವು ಸೋಜೆ ವತನ್, ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ದಂಥ ಕಥೆಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಸೋಜೆ ವತನ್ ಅನ್ನೋ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಜಪ್ತ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ತದನಂತರ ಇವರು ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್ ಅನ್ನೋ ಹೊಸ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ಲೇಖನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ತದನಂತರ ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್ ರವರು ಹಿಂದಿ ಕತೆ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಿಂದಿ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪ, ಶೈಲಿ, ಭಾಷಾ, ಕಥ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಮೆ ಮಾತ್ರ ಮನೋರಂಜನಾತ್ಮಕತೆ ಕಂಡುಬರ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್ ಇವರು ತಮ್ಮ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಯಥಾರ್ಥತೆಯ ಮೂಲಕ ಇವರು ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಇವರು ಸರಿಸುಮಾರು 300 ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಮಾನಸ್ ಸರೋವರ್, ಇದರ 8 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಕಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕಥೆಗಳೆಂದರೆ ಬಡೆ ಘರ್ ಕಿ ಭೇಟಿ, ನಮಕ್ ಕಾ ದಾರೋಗಾ, ಈದ್ಗಾ, ಬಡೆ ಭಾಯಿ ಸಾಹಿಬ್, ಪೂಸ್ ಕಿ ರಾತ್, ಔರ್ ಕಫನ್ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಇವನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಥೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇವರನ್ನು ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಉಪನ್ಯಾಸ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಂದರೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಸಾಮ್ರಾಟ ಅನ್ನೋ ಬಿರುದಾವಳಿ ನೀಡಿ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಸರಿಸುಮಾರು 1 ಡಜನ್ 12 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗೋದಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಕಾದಂಬರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರ ಇನ್ನಿತರೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ವಿವರ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಪ್ರೇಮಾಶ್ರಮ್, ರಂಗಭೂಮಿ, ಕಾಯಕಲ್ಪ, ಗಬನ್ ಔರ್ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಇವು ಆಗಿವೆ. ಇವರ ಅಪೂರ್ಣ ಕಾದಂಬರಿ ಮಂಗಲಸೂತ್ರ, ಅದು ಇನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ. ಇದು ಇವರ ಲೇಖನ ಜೀವನ ನ್ಯಾಯದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಇವರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಜೀವನ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದ್ಗತಿ
ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವಂಥ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ವರ್ಗದ ಜನರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ನ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಣಗೊಂಡಿದೆ. ನಿಮ್ನ ವರ್ಗದ ಈ ಶೋಷಣೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅಜ್ಞಾನ, ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ರೂಢಿಪ್ರಿಯತ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಹೀಗಿದೆ. ದುಃಖಿ ಅನ್ನೋ ಇವನು ಒಬ್ಬ ಚಮಾರ ಜಾತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಝುರಿಯಾ, ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಪಂಡಿತ್ ಘಾಸಿರಾಮ್. ಇವರು ಈಶ್ವರನ ಪರಮ ಭಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಝೂರಿ ಗೋಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಗೋಂಡ ಜಾತಿಯ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೌಣ ಪಾತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸದ್ಗತಿ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके तो चमारी ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कह आवो ना, ऐसा न हो कहीं चले जाए। तो दुखी कहता है, हाँ जाता हूँ, लेकिन ये तो सोच बैठेंगे किस चीज़ पर। उसे उत्तर में झुरिया कहती है, कहीं से खटिया न मिल जाएगी, ठाकुर आने से मांग लाना। तो दुखी कहता है, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठाकुर आने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे? कई थाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो न मिले, भला कटिया कौन देगा? हमारे उपले सेंटे भूसा लकड़ी थोड़ी है कि जो चाहे उठा ले जाए। ला अपनी कटोली धोकर रख दे, गर्मी के तो दिन है, उनके आते आते सूख जाएगी। तो पति के इस बात से प्रत्युत्तर में झुरिया कहती है, वहाँ हमारी कटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नियम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ ये बात तो है, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लो तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वहाँ पवित्र है, ला तो डंडा पत्ता तोड़ लो। तो झुरिया कहती है, पत्तल मैं बना लूँगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दो। तब दुखी कहता है, कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड़ी जल्दी किरोध चढ़ जाता है। किरोध में पंडिताइन तक को छोड़ते नहीं, लड़के को ऐसे पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना, हाँ मुदा तू मत छूना। झूरी गुंड की लड़की को लेकर साहू के दुकान से सब चीजें ले आना, सीधा भरपूर हो, शेर भर आटा, आध शेर चावल, पाँव भर दाल, आध पाँव घी, नून, हल्दी और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गोंड की लड़की न मिले तो बुर्जिन के हाथ पे जोड़कर ले जाना, तू कुछ मत छूना, नहीं तो गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता? नजर आने के लिए उसके पास घास के सिवाय और क्या था? उसे खाली देखकर तो बाबा दूर ही से धुतकारते। पंडित
घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशोपासन में लग जाते। मुंह हाथ धोते 8 बजते। तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी था। उसके बाद आध घंटे तक चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वहाँ पूजन से उठते और भंग छानकर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईशोपासना का तत्काल फल मिल जाता। यही उनकी खेती थी। आज वहाँ पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गड्ढा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। ये तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी। छोटा सा गोल गोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ साहित्य सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी? तो घासीराम ने कहा है, आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। दुखी कहता है, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कर आया हूँ, ये घास कहाँ रख दो। तब घासीराम कहते हैं, इसे गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। ये बैठक भी कई दिनों से लीपी नहीं गई, उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूँ, फिर जरा आराम करके चलूँगा। हाँ, ये लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भूसौल में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तामील करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब तक 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे भी जोर की भूख लगी, पर वहाँ खाने को कहाँ धरा था। घर यहाँ से मील भर था, वहाँ खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाए। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी, जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर जमाया लिया था। वहाँ उसी दम खम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छिलकर बाजार ले जाता था, लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशान तक न पड़ता था। कुल्हाड़ी उचट जाती, पसीने से तर था, हाथ खाता, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था। हाथ उठाए न उठते थे, पांव कांप रहे थे, कमर न सीधी होती थी, आंखों तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जाता था। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ कुछ ताकत आती, उसने सोचा। यहाँ चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी? ब्राह्मणों का पूरा है, ब्राह्मण लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि
गांव में एक गोंड भी रहा रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तमाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई। उसने तमाकू भी दी और चिलम भी दी, पर आग वहां न थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता न करो भाई, मैं जाता हूँ, पंडित जी के घर से आग मांग लूंगा, वहां तो अभी रसोई बन रही थी। ये कहता हुआ वह दोनों चीजों लेकर चला आया और पंडित जी के घर में बरोटे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रचिक आग मिल जाए तो चिलम पी ले। पंडित जी ने भोजन कर रहे थे। पंडिताई ने पूछा, ये कौन आदमी आग मांग रहा है? तब पंडित जी कहते हैं, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है, कहाँ है, थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है, दे दो। पंडिताई ने गरज कर कहा, वह घर में क्यों आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभाग था, और क्या? पंडिताइन कहते हैं, अच्छा, इस बकत तो आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह कोई घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था, नाहक आया। सच तो कहती है, पंडित के घर में चमार कैसे चला जाए? बड़े पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है। भर चमार थोड़ी ही है, इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल भी न आई। इसलिए अब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वहां मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडिताइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर में चला आया। चमार की अक्ल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख न होते तो लात क्यों खाते? पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूर से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर को झोंटे देने लगा। उससे मन ने कहा, ये एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्द फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपये मार जाते हैं। ब्राह्मण के रुपये भला कोई मार ले तो घर भर का सत्यानाश हो जाएगा। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खट खट की आवाजें आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यावहारिक क्षेत्र समझकर पूछा, रोटियां है? पंडिताइन कहती है, हाँ, 2-4 बची हुई है। तब पंडित कहते हैं, 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम शेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, शेर भर तो फिर रहने दो। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आध घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़ के बैठ गया। इतने में गोंड आ गया और आकर उन्होंने बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े ये गांठ न फटेगी, नाहक हलकान होते हो।
दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई। तब गोंड कहता है, कुछ खाने को मिला कि काम ही करना जानते हो, जाके मांगते क्यों नहीं? दुखी ने कहा, कैसी बात करते हो चिकुरी, ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी? तब गोंड ने कहा, पचने को पच जाएगी, पहले मिले तो। मूंछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजूरी देता है। ये उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी कहता है, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ले तो आफत आ जाए। ये कहकर दुखी फिर संभाल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिखुरी को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आध घंटे खूब कस कस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी न पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और ये कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े ये न फटेगी, जान भले ही निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने ये गांठ कहाँ रख छोड़ी थी, फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तक तो पड़ती नहीं। मैं कब तक इसे चीरता रहूंगा? अभी घर पर 100 काम पड़े हैं, कारज परोजन का घर है, एक न एक चीज घटी रहती है, पर इन्हें क्या चिंता। चलो, जब तक भूसा ही उठा लाऊं, कह दूंगा बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झोंवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फरलांग से कम न था। अगर झोंवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता, लेकिन फिर झोंवा को उठाता कौन? अकेला भरा हुआ झोंवा उससे न उठ सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली, मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झुए पर सिर रखे सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल, तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर साहित्य भी वैसा ही निकलेगी, मुझे दोष मत देना। इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई, जो बातें पहले से सोच रखी थी वहाँ सब भूल गई। पेट पीठ में धंसा जाता था। आज सवेरे जलपान तक न किया था, अवकाश ही न मिला, उठना ही पहाड़ मालूम होता था। जी डूबा जाता था, पर दिल को समझा कर उठा। पंडित जी है, कहीं साहित्य ठीक न विचारे तो फिर सत्यानाश ही हो जाए। तभी संसार में इतना मान है, साहित्य का तो सब खेल है, जिससे चाहे बिगाड़ दे। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ, मार कसके, और मार, कसके मार, अबे जोर से मार, तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है, लगा कसके। खड़ा सोचने क्या लगता है, हाँ हाँ बस फटा ही चाहती है, दे उसी दरार में। दुखी अपने होश में न था, न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आध घंटे तक वहाँ इसी तरह उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच में फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। उसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा।
भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के दो चार हाथ और लगा दे, पतली पतली शैलियाँ हो जाए। दुखी न उठा। उन्होंने भी अब उसे दिख करना उचित न समझा। पंडित जी ने भी भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्यों क्यों पड़े ही रहोगे दुखी, चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ, सामान ठीक ठाक है ना। दुखी फिर न उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हकबका कर बोली, वहां तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना। तब पंडित जी कहते हैं, हाँ लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा। पंडिताई ने शांत होकर कहा, होगा क्या, चमरौने में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाए। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे ब्राह्मणों की ही बस्ती थी। केवल एक घर गोंड का था। लोगों ने इधर का रास्ता छोड़ दिए। कुएं का रास्ता उधर ही से था। पानी कैसे भर जाए। चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए। एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं, कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं। इधर गोंड ने चमरोने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकत होगी। दिल लगी है कि ये गरीब की जान ले ली। पंडित जी होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे, पर चमरोने का कोई आदमी लाश उठा लाने को तैयार न हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहां चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 और चमारिनें थी। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रोब छाया हुआ था, एक भी न भिनका। आखिर निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं को सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार न आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते भला, ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है, कहीं कोई दिखा दे। पंडिताई ने झुंझलाकर कहा, इन डाइनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सबों का गला भी नहीं थकता। पंडित ने कहा, रोने दे चुड़ैलों को, कब तक रोएगी। जीता था तो कोई बात न पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सब आ पहुंची। पंडिताइन चमार का रोना मनहूस है। तो पंडित जी कहते, हाँ हाँ बहुत मनहूस। तब पंडिताइन कहते हैं, अभी से दुर्गंध उठने लगी। तब पंडित कहते, चमार था, ससुरा की नहीं। साध अखाद किसी का विचार है इन सबों को। तब पंडिताइन कहते हैं, इन सबों को घिन भी नहीं लगते। पंडित जी कहते हैं, ये सब तो भ्रष्ट है। रात को किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार न आया। चमारी ने भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और
फंदे को खींचकर कस लिया। अभी कुछ कुछ धुंधला था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति से और निष्ठा का पुरस्कार था। धन्यवाद।